हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चे के लिए है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक बच्चे के लिए कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जो है बहुत कुछ हम समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये और भी आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं और प्लस जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, structure of the atmosphere. What is the structure of the atmosphere here? The atmosphere is the integrated part of the earth. It is surround their earth from all the sides. Generally, it is extend up to about 1,600 kilometer from to the earth's surface, and 97% of the total amount of weight of the atmosphere is a limit up to the height of about 30 kilometer. There is a most important, the atmosphere can be divided into the 5 layers according to the diversity of temperature and density. There is a most important, the first layer troposphere, second is a stratosphere, and the third is a mesosphere, and fourth is a ionosphere, and fifth is the exosphere. There is structure of the atmosphere is a 5 type. There is according to the temperature and density. Here show the diagram. There is a exchange of density of temperature here. Exosphere is the first of all, ionosphere and the mesosphere show here. The 400 kilometer is the exosphere, and the less than the 80 kilometer here ionosphere, and there is the most important, and there is a down for down, and there is a come to, there is the mesosphere and stratosphere and the troposphere pulse. There is the most important structure of the sphere on this diagram. The first here, terrosphere. Terrosphere is the, this is the lowest layer of the atmosphere. This is the lowest layer of the atmosphere. The height of this layer is about 80 kilometers on the equator and the 8 kilometer on the poles. The main reason of higher height at the equator is due to the presence of the hot convections current that is a push the gas upward. There is a most important. This is the most important layer of the atmosphere because all kind of weather change take place only in this layer. There is a most important here. This is the most important here because the all kind of weather change the place only in this layer, and due to this change or development of living world take place on the earth, and the air never to remain static in the layer. Therefore, this layer is called changing sphere or troposphere. There is the most important. The environmental temperature decrease with the increasing height of the atmosphere. It is a decreasing at the rate of the 1 Celsius at the height of the 165 meter. And this is called to the normal Laplace rate. There is the most important here. The upper limit of the troposphere is called troposphere pulse, and this is a transitional zone.
And in this zone, the characteristics of the both the troposphere and the ionosphere are found here. Stratosphere, there is the most important here. This layer is above to the troposphere, and this layer is spread up to the height of 50 kilometers from the Earth's surface. It is an average 10 to 40 kilometers. There is the most important. The temperature remains to almost the same in the lower part of this layer up to their height of the 20 kilometers. After this temperature increasing slowly with the increasing in the height. The temperature increased due to the presence of the ozone gas in the upper part of this layer. The wealth related to incidents do not take place in this layer, and the air is below to horizontal here. Therefore, this layer is a considered idea for flying of aircraft. Our next layer is the mesosphere. The mesosphere, it is a third layer of the atmosphere, spreading over to a stratosphere. They spread up to the height of 80 kilometers from the surface of the earth, and its extent is 30 kilometers. The temperature goes on decreasing and drop up to the minus 100 Celsius. The meteors are falling star occur on this layer. There is a most important. The next layer, ionosphere. Ionosphere is the most important layer. This is the fourth layer of atmosphere. It is localized about to the mesosphere, and this layer is spread up to the height of 400 kilometers from the surface of Earth. The wealth of this layer is about 3 kilometers. The temperature start to increasing again with the increasing height in this layer. An electrically charge is a current flow in this air and the sphere, and radio wave are the reflected back on the earth from this sphere, and due to this radio broadcasting has become possible. Their ionosphere is the reason for the radio broadcasting on possible. The next is here the exosphere. The exosphere is this last layer of the atmosphere localized above to the ionosphere and extend to the behind 400 kilometers above the earth. The gases are very present in this sphere due to lack of gravitation force, and therefore the density of the air is very less here. The most important fact here, change of weather take place only in the troposphere, and change of weather condition do not take a pulses in the stratosphere, and this is the idle layer of the flying air. This aeroplane is the most important flying in the air or stratosphere, and ions are found to the abundance in the ionosphere. Ionosphere is reflect back the radio wave to the earth and make to the possible for the communication system. The communication system is a possible here is a present of ionosphere. Ionosphere is reflect back the radio wave to the earth make a possible for a communication. And density air is the least of the exosphere. There is the most important point here. A density of air is the least is the exosphere. Here is the most important 3 point here arrive. There is a flying airplane is possible because the poles to the stratosphere, and possible for the communication system. There is a layer of present to ionosphere, and density of air is the least of the exosphere. There is the most important पॉइंट नोट डाउन फॉर योर नोटबुक। हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। वायुमंडल पृथ्वी की अभिन्न अंग है और यह पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। सामान्यतः यह धरातल के लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, और वायुमंडल कुल भाग की जो मात्रा का 97% भाग लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तापमान और घनत्व की विविधताओं के आधार पर वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा जा सकता है, यानी 5 परत जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं और वही मंडल कहते हैं। ये कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये 5 परतें, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो या आयन मंडल हो या वही मंडल हो। ये वायुमंडल की संरचनाओं को जो है बहुत ही विस्तृत और जो है खासियत से भरा हुआ बनाता है।
इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक में अगर देखना चाहें तो आपको देख सकते हो कि 400 किलोमीटर पर जो है वही मंडल जो है अपना स्थान ग्रहण किए हुए शीर्ष पे बैठा हुआ है। उसके बाद आयन मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है और उसके नीचे जो है क्षोभ मंडल सीमाएं दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो है रेडियोधर्मी तरंग जो है परिवर्तन का कार्य करता है, जिसके विषय में जो है विशेषताओं को हम आगे जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल की जो है क्या विशेषताएं हैं, क्षोभ मंडल की विशेषताओं को जो है यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखा जाए तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में होती है, यानी वायुमंडल के सबसे नीचे परत जो है वायुमंडल के सबसे निचले परत के अंतर्गत आता है और इस परत की ऊंचाई विषुवत पर जो है वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर ही है। ऊंचाई की विभिन्नताओं का मुख्य कारण जो है विविध वृत्त का तेज संवहनी धाराओं का चलना, जो धरातल की ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। उसके पश्चात जो है तीसरा वायुमंडल की यह सबसे जो है महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसी परत में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण जो है पृथ्वी पर जीव जगत की उत्पत्ति एवं विकास होता है। इस भाग में वायु जो है कभी शांत नहीं रहती है और इसलिए इस मंडल को जो है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में कमी होती चली जाती है तथा प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है औसतन 1 सेल्सियस तापमान घटता जाता है। इससे ही जो है सामान्य ताप हर्ष दर कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आता है। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगे क्षेत्र को जो है क्षोभ सीमा कहते हैं, तो यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें जो है क्षोभ मंडल की जो है समताप मंडल की मिली जुली विशेषताएं पाई जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है हमारा समताप मंडल। देखिए समताप मंडल क्या है और इसकी क्या विशेषता है। देखिए यह जो है क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है, यानी यह क्षोभ मंडल के ऊपर की एक परत है और इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर जो है धरातल से है और कि इसकी जो औसतन मोटाई लगभग 40 किलोमीटर के समान मानी जा सकती है, जो कि इसकी इम्पोर्टेंट को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं इसी परत को निचले भाग में जो है 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान जो है लगभग सामान्य रहता है और इसके बाद ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है और इस परत के ऊपर भाग में ओजोन के होने के कारण ही तापमान सदैव बढ़ता रहता है। इस मंडल जो है में किसी प्रकार की जो है मौसम की घटना नहीं घटती है और यह वायु को क्षैतिज चलाती रहती है और इसी कारण यह परत जो है वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है, यानी जो एरोप्लेन चलती है इसी मंडल में चलती है और ये वायुमंडल में जो है वायुयानों को उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है मंडल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात है मध्य मंडल। देखिए मध्य मंडल की क्या विशेषता है। समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल की तीसरी परत का जो है विस्तार है और इसे जो है मध्य मंडल ही कहते हैं। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 80 किलोमीटर तक मापी जाती है और इसकी मोटाई जो है 30 किलोमीटर के सामान्य है। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। कहते हैं अगर हम तीसरी बात करें तो इस मंडल में तापमान पुण्य कम होने लगता है, यानी यहाँ से जो है तापमान बहुत कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तापमान 16 सेल्सियस से -100 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, यानी जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे यहाँ पर जो है तापमान कम होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आयन मंडल। तो ये आयन मंडल की भी अपनी एक विशेषता है और इस विशेषता से जो है हम जो है अनभिज्ञ तो नहीं रहना चाहते। कहते हैं आयन मंडल जो है यह वायुमंडल की चौथी परत के रूप में है और यह मध्य मंडल के जो है ऊपर स्थित होती है। इस परत की ऊंचाई धरातल से जो है 400 किलोमीटर तक है और इस मंडल की मोटाई लगभग 300 किलोमीटर आंकी गई है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ पुण्य बढ़ता ही चला जाता है और इस मंडल में वायु में जो है विद्युत अवशोषित तरंगें प्रभावित होती रहती है और रेडियो तरंग इसी मंडल से जो है परिवर्तित होकर
पुनः जो है पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे हम रेडियो प्रसारण संभव होता है। आपको पता है कि रेडियो जो है प्रसारण इन्हीं कारणों से होती है कि इसकी तरंग जो है आपस ये रिटर्न कर देती है, और ये सब जो है आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके पश्चात अंतिम जो है हमारे समय वायुमंडल है। वायुमंडल आयन मंडल के ऊपर स्थित जो है परत वायुमंडल के अंतिम परत के रूप में होती है, और इस मंडल में जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैस अति विरल हो जाते हैं। अतः यहाँ वायु का घनत्व बहुत ही कम रहती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इम्पोर्टेंट की बात हम करें तो यहाँ पर क्षोभ मंडल में ही जो है मौसम की सभी घटनाएं घटती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल के कारण ही मौसम की सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती है, और समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यहाँ पर समताप मंडल में कोई भी मौसम की घटना नहीं घटित होती है। यह वायुयानों के उड़ानों के लिए एक आदर्श परत के रूप में देखी जा सकती है, यानी वायुयानों की जो उड़ानें हैं इसी परत में की जाती है। जो है आयन मंडल में आयन की प्रधानता आयन रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परिवर्तित करके जो है संचार व्यवस्थाओं को संभव बनाती है। देखिए यहाँ कई मानने में जो है यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारा जो है किस लेयर में जो है उड़ाने के लिए आदर्श परत के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा कि समताप मंडल है तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के लिए किस लिए उपयोगी होता है, क्या उपयोग है इसका, या रेडियो तरंगें जो है किस परत में जो है पाई जाती है और इसका क्या महत्व है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आयन मंडल में आयन की प्रधानता होती है, और आपको पता ही है कि कोई भी रेडियो तरंगें जो होती है वो जो है आपस यहाँ पर परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से जो है हमें सभी दूर संचार में जो है उपयोग किया जाता है, यानी जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसी कारण जो है कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। शायद ये बात आपको पहले पता नहीं था, अब जो है आपको पता हो गया होगा। भाई मंडल में वायु का घनत्व सबसे कम पाया जाता है, तो ये काफ़ी बातें जो यहाँ पर थी इम्पोर्टेंट थी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।